Fine. So we are starting with उर्वशी सोलंकी. हाँ, सोलंकी इज ओल्ड केस स्टडी, वो सोलंकी निकाल दिया है, बट वो नाम याद रह गया ऐसा है. सो वी आर स्टार्टिंग विथ उर्वशी एंड दिस आवर फर्स्ट केस स्टडी. समझते इसको, बहुत ध्यान से समझते हैं कि किस तरह से डेटा हमें दिया जाता है एंड हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा. नाउ एज वी नो कि जो प्रोबेबल 5 केस स्टडी है वो तो उनकी साइट पे है, और उसके जो प्रोबेबल क्वेश्चंस मेरे पास है वो भी हम करेंगे. बट पहले जो उनके जो सैंपल पेपर है, लेटेस्ट सैंपल पेपर ऑन देयर वेबसाइट, वो हम कर लेते हैं. एंड यस, इट इज जस्ट गिविंग अस एन आइडिया, not exactly things would be there in exam from this. Okay, Urvashi, age 34 years, is employed in a senior position in a Mumbai based firm. She has a son, Suryansh, and a daughter, Dhruvi, age 9 years. She is the sole guardian of her children pursuant to her recent divorce. She is currently residing in a rented house. Suryansh has just passed 8th standard while Dhruvi is studying in 3rd standard. She has approached you, a CFP-CM practitioner, for preparing a financial plan for her family. She has plans to retire early from service at her age 55 years. She shares the following financial information with you. Now see, salary का डेटा हमें दिया गया है. An employer's contribution to NPS is given to us. So कहीं ना कहीं हम इसको भी ध्यान में लेंगे if they are asking us taxation of salary. Regular outgoings have been, you can see household expense, services availed, school fees, house rent, power, telecom and fuel, and car loan EMI. These are the regular outgoings given to us. Move further. Outgoing towards investment and insurance. तो यहाँ पर essentially हमें equity mutual fund 25,000 SIP, debt mutual fund 15,000 SIP. Now you can see something mentioned here, footnotes. So we'll refer to the footnotes quickly so that we get better idea about ये first में क्या है, second में क्या है, then third and fourth में क्या है, वो साथ साथ में पढ़ते रहते हैं. Okay, so equity mutual fund is diversified open-ended growth equity schemes started 3 years ago with an initial investment of rupees 1 lakh monthly SIP. ठीक है, initial investment 1 lakh and monthly SIP has been there, और ये outgoing है, और उसकी market value भी हमें दी गई है. You can see this. The market value has been 15.45 lakh. Correct? Then another is debt mutual fund, same 15,000. Same way, in fact, long duration debt schemes with growth options started 3 years ago. Initial investment 1 lakh and monthly SIP. Identical data. Insurance premium is 38,759. Right, insurance premium is 38,759. अब वो किस चीज का है? So total cover 1.5 crore across 3 policies of rupees 50 lakh each. All of them, all term plans having cover up to Urvashi's age 50, 53 and 58. Right, so what we can understand is कि 3 plan है. One is getting over at 50, then another is 53 and third is getting over at 58. ठीक है, चलो अब आगे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी है हमारे पास. देन मूविंग फर्दर वी हैव कार इंश्योरेंस प्रीमियम. देन ये सब मार्केट वैल्यूज है, लंबा लिस्ट. अब सब फुटनोट हम नहीं पढ़ रहे, नीड बेस्ड पढ़ेंगे, बट आई जस्ट डिस्प्लेड की यस फुटनोट में ये सब रिलेवेंट डेटा हमारे पास रहता है. एंड देन एनपीएस बैलेंस, पीएफ, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, कार, बैंक अकाउंट. Right, so all these things have been there with us. And car loan का outstanding है. यहाँ पर आप देखो हाउस रेंट है, that means उनके पास खुद का घर नहीं है, तो इसीलिए हाउसिंग लोन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है. ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड पैटर्न है डेटा देने की. देन मूविंग फर्दर वी हैव द गोल्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट. These goals hint us
the probable questions. But yes, we do have, यहीं पे सीख लेंगे, देखिएगा आगे जाके कि ये जो गोल्स है कितने क्वेश्चन इससे एग्जैक्टली कनेक्टेड है और कितने इससे अलग है. So you, in consultation with Urvashi, have crystallized the following financial goals for which the strategy is to be devised and presented to Urvashi. First goal, purchase a house in the next 3 years costing currently 1.25 crore. Provide for own funds, transfer and stamp duty expenses to the extent of 30% of market value. ठीक है, सो वो टाइम की जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके 30% हमें ओन फंड का अरेंजमेंट करना है. सेकंड, expenses towards professional courses to be pursued by children with current outlay of 25 lakh each, required at the respective age of 22 years, such cost escalating at 8% per annum. Marriage expenses rupees 10 lakh current cost for each child at the respective age of 27 years, cost escalation for such expenses 6% per annum. So see, यहाँ पर जनरल इन्फ्लेशन नहीं दिया है, इंडिपेंडेंट गोल का हमें इन्फ्लेशन दिया गया है. So things have been isolated much more. So first goal related to buying a house. Second goal relates to children education. Third goal relates to marriage. Fourth is retirement and fifth is vacation. ये standard pattern है. Again, we also think that way, more or less individual के life में goal क्या हो सकते हैं? एक अच्छा घर चाहिए, right? बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, अच्छी retirement and good vacation expenses. These are the major 5 goals for an individual. ठीक है, so अब retirement का भी need based हम पढ़ेंगे. Then vacation भी हम need based पढ़ेंगे, right? So these are the goals. इतना ज्यादा हमको याद भी नहीं रहेगा. और उर्वशी के लाइफ पैरामीटर 85 इयर्स है. Then she is expected to live up to 85 and retirement age उनकी कितनी है? 55. Currently she is 34. We have been given different assumptions of investment rates. 8 तरह के रेट हमें दिए गए. So including equity, then balance, bond, liquid, gold, real estate, bank and post office, PPF, EPF, and then we are given inflation, risk-free rate, and obviously cost inflation index to take care of capital gain taxes. So, should you have any question related to the case study, ask me. First thing we should do is कि अब 2 तरह से एग्जाम होती है हमारी, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि इफ यू आर राइटिंग प्रॉक्टर्ड एग्जाम तो 1 by 1 क्वेश्चन आएंगे. So write question 1, then question 2, question 3. Right, you can skip the questions as such. And अगर हम NSE पे एग्जाम दे रहे तो then we have the normal access to all the questions at one go. Means we can scroll and see all the questions at a time. अब यहाँ पर see, I'll show you how it is to be planned. आप अपने से ही समझ जाओगे कि what should be done first, what should not be done first. And as we know, हमारे एग्जाम में NSE एग्जाम में it is 2 marker, 3 marker and 4 and 5 marker क्वेश्चन रहते हैं. See this. अब क्वेश्चन शुरू होता है नॉर्मली, so simulated होते हैं, so not necessarily that you get 2 marker question first. So 2 marker, 2 marker, 3 marker, further 2 marker, 3 marker. देखते हैं, let's just try to understand and we decide कि हमें पहले क्या कर लेना चाहिए. Fine. अब आगे बढ़ते हैं. See this. 4 marker, 3 marker, 5 marker, 2 marker, 4, 5, 5. And further 2, 3 and 5. अब हमें 4 क्वेश्चन तो 5 मार्क के मिलेंगे इसमें. What is so wonderful here is कि टाइम का कोई सच कांस्टेंट नहीं है, बट यस एफिशिएंसी का रियली शॉर्टेज है. Why efficiency? Because you solve so many big questions at start
आप थक जाओगे, मेंटली थक जाओगे, एंड देन यू वोंट बी एबल टू थिंक मोर ऑन 3 मार्कर क्वेश्चंस एंड 2 मार्कर क्वेश्चंस, एंड यू स्टार्ट लूजिंग मार्क इन दोस क्वेश्चंस. सो एक जनरल चीज है दैट वी शुड नेवर स्टार्ट विथ 5 मार्कर क्वेश्चंस. 5 मार्कर क्वेश्चंस भी जब हम शुरू करेंगे तो विल नॉट टेक द क्वेश्चंस ऑफ वैकेशन फर्स्ट. एजुकेशन वाला भी हम वो पहले सॉल्व नहीं करेंगे. नॉर्मली 5 मार्कर क्वेश्चन में अगर हमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ पूछा है, टैक्स रिलेटेड पूछा है, तो वो सब हम पहले कर देंगे. रिटायरमेंट वाला भी कहीं ना कहीं इजी होता है, उतना टफ नहीं होता है. बट यस, वैकेशन एंड एजुकेशन, ये 2 गोल्स बहुत ही डेंजरस होते हैं. एंड बिलीव मी, ये 4 क्वेश्चन जो है ना, मीन्स 2 वैकेशन के और 2 एजुकेशन के, दोनों केस स्टडी में, अगर आप 4 के 4 क्वेश्चन ऐसा सोच लो कि हम छोड़ देते हैं, तो भी आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है. बट हाँ, अगर ये 4 क्वेश्चन आप पहले करने का ट्राई करोगे तो पास होना मुश्किल भी हो सकता है. सो ये अपना थंब रूल है सालों से, फ्रॉम like last 12 years. This is the general advice to all, and that has been the reason. जो रिजल्ट है अपना, that is mind boggling. रीजन यही है कि 5 मार्कर क्वेश्चंस हम पहले नहीं करते हैं, पहले ढूंढ ढूंढ के इजी क्वेश्चन कर लेते हैं. एंड टाइम का कोई कांस्टेंट नहीं है पेपर में. लाइक व्हाट एवर पीपल से, अपने स्टूडेंट्स लाइक 2 घंटे में भी पेपर खत्म कर देते पूरा, 2 से 2.5 घंटे में. सो नॉट टेलिंग एनीथिंग फॉल्स, ये फैक्ट है. ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं बिकॉज प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे पहले क्या करना है और लास्ट में क्या करना है. और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है, इसमें मगजमारी करने का कोई मतलब ही नहीं है. सो बस लेट्स प्रे गॉड, टेक इट एंड मूव फर्दर. सर हाँ सर, पर केस स्टडी 4 क्वेश्चन આવશે 5 मार्क ना? हाँ, yes, that is fixed. That is the fixed. And all of them will be from vacation or retirement. They are mostly 3 goals, I can say: vacation, retirement, and education. These are the most likely to be 5 marker questions. ઓકે, એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈ 5 માર્કનો અટેમ્પ્ટ જ નહીં કરવાનો. Never do it. If you want to fail, do it. और मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये सीखा, बिकॉज देयर वाज नोबडी टू गाइड मी व्हेन आई वाज राइटिंग एग्जाम ऑफ सीएफपी. देयर वाज प्रैक्टिकली नोबडी टू गाइड मी. I learned from my own experience then how the paper should be planned, and then it was well experimented on students, and now it has been a process. ठीक है, चलो. So as I say कि 2 मार्कर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, and they should be. One more question. Yes, please. Sir, should we skip all the 5 marker questions in the first case study and directly start second one? Absolutely. Absolutely. आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पहले करने ही नहीं है. आप ये बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन से, एक केस स्टडी से, एक केस स्टडी का 2 मार्कर 3 मार्कर करने के बाद दूसरा केस स्टडी में डायरेक्टली चले जाए, वापस 2-3 करे? हाँ, वो आपका प्रेफरेंस है, दैट्स योर प्रेफरेंस. बट 5 मार्क के क्वेश्चन तो आपको सब एंड में करना. 8 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क के, जो आपको लास्ट के 2 घंटे में सॉल्व करने हैं. राइट, सो डिवाइड पेपर दिस वे. मेरा ऑलरेडी एग्जाम 5 का वीडियो तो है ही है, सो उसमें आपको काफी गाइडेंस मिल जाएगा. सो पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर ही देना है हमें. दैट लास्ट 2 आवर्स एक्सक्लूसिवली फॉर 5 मार्कर क्वेश्चंस, एंड आगे के 2 घंटे बाकी के पेपर के लिए. और आप 2 घंटे में ही पास हो जाओगे आराम से. राइट, अगर आप 2-3 क्वेश्चन अच्छे से कर लो तो आपको ही पता चल जाएगा हम पास हो चुके हैं. देन जस्ट सॉल्व 5 मार्कर क्वेश्चंस टू एंश्योर गुड ग्रेड्स. टोटल कितना घंटे है सर? सॉरी, 4. ऐसा पूछने का ये पॉइंट. 2 और 2 4 हो गया ना? हाँ नहीं, मुझे लगा 3 है. मुझे लगा पहले. फर्स्ट क्वेश्चन: यू आर अबाउट टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल प्लानिंग recommendations to Urvashi. You have a look at the checklist of things to do at this stage. What would you do that could have previously missed? क्वेश्चन बहुत क्लियर है. ऑप्शंस हम पढ़ते हैं, और ऑप्शंस में भी एक स्टैंडर्ड मेथड मैंने ढूंढ ली है कि इफ क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, two options are going to be useless for you. बाकी के 2 बचे, मीन्स 4 है, उसमें से 2 आपको पहले एलिमिनेट कर देने हैं.
then you will have two options which are cut to cut. उसमें से थोड़ा दिमाग लगा कि आपको सही ऑप्शन ढूंढ लेना है. Fine. So 50-50 strategy. हाँ, elimination strategy, right? Question 1. Once again, you are about to present financial planning recommendations to Urvashi. So हम कौन से स्टेप में है? That is first we have to think. So चलो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के 4 स्टेप, राइट, बैक ऑफ इट याद आना चाहिए. पहला क्या है? Gathering the data. क्या बात करते हो? Establishing. engagement. Yes, sorry. Establish client relationship. Establishing the client Establishing relationship. Then it is gathering data. Gathering. Third is Third is analyze. Then synthesize, na? analyzing financial situation. And fourth is develop recommending financial plan. नहीं, analyzing के पहले, analyzing के बाद Develop आएगा, sir. synthesizing है ना? Develop. हाँ, Develop analyzing, right, and recommending financial planning strategies. That is the step 4. ठीक है. अब हम यहाँ पर कहाँ है? Fourth. Analysis. We're about to present ना? Analysis हो गया, अभी recommend करने वाला है सर. हाँ, recommendation में. About to present the financial planning recommendations to Urvashi. About to recommend. कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं? नहीं कर चुके. नहीं, अभी करना बाकी नहीं है. कर चुके. How to recommend the financial planning recommendations. You have looked at checklist of things to do at this stage. Means हम अपने अब देख लेते हैं ना, उनके पास recommendation करने के लिए obviously we are at step 4. ठीक है, that is recommending financial planning strategies. And अब हम चेक कर रहे हैं कि चलो ये मैंने देख लिया है, राइट, उनका एज पैरामीटर, ये गोल, अनदर गोल, सब चेकलिस्ट में देख रहा हूँ. सो इट इज एवरीथिंग रेडी. नाउ आई हैव टेकन 1 hour विथ माय क्लाइंट एंड अब मुझे उनको रिकमेंडेशंस करना है. बट स्टिल आई वुड बी विलिंग टू लुक एट कि शायद मैं कुछ भूल गया हूँ, तो क्या हो सकता है. सो ये 4 में से हमें क्या और चेक कर लेना चाहिए जो शायद हम भूल चुके हैं. प्रेजेंट योर लॉजिक ऑन हाउ रिस्क हैव बीन मिटिगेटेड इन योर रिकमेंडेशंस. ठीक है. Then disclose any conflict of interest and how they impact your recommendations. Draw a future roadmap to convince Urvashi on how various goals would be achieved with the recommendations being made. Seek Urvashi's approval to the recommendations by presenting instances of your clients who have been benefited in past. B for Bombay. सोचो थोड़ा. So we start. Present your logic on how risk have been mitigated in your recommendations. Right? ये तो miss नहीं होगा. This should not be missed while we are defining financial planning recommendations. Right? ये तो हमने already cover किया ही होगा because we are doing asset allocation या तो insurance के लिए जो हम planning कर रहे हैं. So how risk have been mitigated in your recommendations. तो ये तो होगा. Then draw a future roadmap to convince Urvashi on how various goals would be achieved with your recommendations being made. तो ये तो पक्का मिस नहीं होगा ना, ये तो हमने डिजाइन किया है ना पूरा. Recommendation में होगा क्या? It is all future roadmap. How things are going to be achieved. Talking about retirement, तो हम retirement कैसे achieve करेंगे? How good your lifestyle is going to be, or what challenges you are going to face. तो ये तो पूरा roadmap तो हम बनाएंगे. ओके, सो सी तो एकदम कन्विंसिंग स्टेटमेंट था कि ये तो मिस नहीं होगा, यही तो हमें प्रेजेंट करना है. Seek Urvashi's approval to the recommendations by presenting instances of your clients who have been benefited in the past. सर ये हो सकता है क्योंकि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना. ये नहीं हो सकता है ना. ठीक है, सो ये भी हम मिस आउट नहीं कर रहे. ठीक है, सो सेंटेंस सी और डी हमारे आंसर नहीं है. अब हमारे आंसर ए और बी दोनों में से एक है. सो प्रेजेंट योर लॉजिक ऑन हाउ रिस्क हैव बीन मिटिगेटेड इन योर रिकमेंडेशंस एंड डिस्क्लोज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ दे इंपैक्ट योर रिकमेंडेशंस.
अब ए और बी में से ए तो सही में like we have to risk how risk have been mitigated that we have to present. तो ये तो That's the main सही है, part. ये भूल नहीं सकते हैं. Recommendation. This we cannot forget. So actual answer is what we have to now take care of is कि yes, how conflict of interest can impact the recommendations. Right. So this is what we can check कि शायद हम इसे भूल चुके हो before we go and present the plan. So that's the question. So इसमें एलिमिनेशन रूल आपको हमेशा काम लगेगा. 2 सेंटेंस तो कन्विंसिंगली आपको पता चली जाएंगे कि नहीं ये आंसर नहीं है जो पूछ रहे वो. शायद 2 कंप्लीटली गलत होंगे या एग्जैक्टली सही होंगे जो आपके आंसर में नहीं है. बाकी के 2 सेंटेंस आपको बॉइल डाउन करने हैं और उसमें फिर दिमाग लगा के सही आंसर आपको ला देना है. बट हाँ, दिस 2 marks are more precious than 5 marker question. Right? So ये एक रूल याद रखना है. चलो ये क्वेश्चन क्लियर हमको. Sir, point D is bit confusing on one No, time. this is absolutely not there in the financial planning recommendation that you are asking Urvashi to approve the recommendations. Yes, based on other things. ये तो आप मिस नहीं कर सकते हो. Right? There is some ethical part here. Right? So ये तो हो ही नहीं सकता है. So that has been the reason. B और D तो हमने निकाल ही दिया कि ये 2 तो आंसर नहीं हो सकते हैं. A और B हमारे लिए थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट थे, but yes, we finally boiled down to B. सर इसमें ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो C राइट, और डिटेल में एक वर्ड आप पकड़ने जाओगे तो आपको सेंटेंस ही और भी गड़बड़ वाला लगेगा. बिकॉज ये कन्विंस जो है एक्चुअल में प्लानर हैज टू जस्ट गिव रिकमेंडेशंस. राइट, कन्विंस तो करने की बात ही नहीं है. डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द क्लाइंट. सो वैसे भी आप देखो तो ये आंसर नहीं है. सर ए जो है ना वो that is done at the time of recommendation. हाँ, this is at the time of recommendation. But हाँ, A and C is done at the time of recommendation. Definitely done. और इसमें जो convince word है वो नहीं हो सकता है. ठीक है, तो मैं एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था वो आप समझो फिर से. So what the question is asking you कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन करने जा रहे हो. राइट, तो आप चेकलिस्ट लेके बैठे हो कि क्या क्या चीजें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. राइट, सो जो लॉजिक है वो मैं रिस्क मिटिगेशन का कर चुका हूँ, रोड मैप बना चुका हूँ. ठीक है, उर्वशी का अप्रूवल मुझे चाहिए. राइट, ये सब चीजें अप्रूवल नहीं सॉरी बट जितनी भी चीजें मुझे उनको प्रेजेंट करनी है इन दी स्टिपुलेटेड टाइम वो सबका मैं चेकलिस्ट बना के जा रहा हूँ कि ये सब कुछ आ गया है. सो आई एम डन विथ माय साइड. तो इसमें एक चीज शायद हम फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते भूल चुके हो, लाइक या तो हम कंसिडर नहीं किए हैं, वो क्या है. सो दैट इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच कैन एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट योर रिकमेंडेशंस. अब यहाँ पर और सोचो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो सकता है. हाँ, मैं वही सोच रहा था. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कर रहा है वो मतलब बिकॉज ऑफ कमीशन बना सकता है, तो हिज रिकमेंडेशंस कैन बी टिल्टेड टुवर्ड्स व्हिच गिव्स हिम द मोस्ट कमीशन. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर आ सकता है आप वो बताओ. इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन थिंग ऑन सेकंड क्वेश्चन. Urvashi wants to understand the rationale of having periodic review of financial plan that you propose to prepare. Which one shall you avoid to mention? अब देखो, which one shall you avoid to mention? So that means इसका मीनिंग क्या हुआ? Avoid to mention. तो आप क्या मेंशन नहीं करोगे या मेंशन नहीं करोगे या मेंशन करना अवॉइड करोगे, ये आपको नहीं बताना चाहिए वैसे लॉजिकली. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट. और रैशनल मींस लॉजिक ऑफ हैविंग पीरियोडिक रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल प्लान. तो हम लाइक बता रहे कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ पीरियोडिक रिव्यू और उसके लॉजिक जो बताएंगे उसमें हम क्या नहीं बताएंगे, क्या नहीं बताना चाहिए.
So to find out if adjustments to the earlier recommendations are required due to changes in any personal or economic conditions, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. मॉनिटरिंग जो पार्ट है उसी की बात है. This comes in which step of financial planning process? Monitoring. And yes, definitely उसमें हम कुछ recommendations change भी कर सकते हैं based on the economic parameters और personal parameters. तो ये तो सही है, तो ये तो हमें mention करना चाहिए. So we have to check कि नहीं, हमें monitoring क्यों करना चाहिए, तो उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं, economic changes हो सकते हैं, आपके personal life में changes हो सकते हैं, उसके चलते हमें हमारे recommendations में भी change करना पड़े. To assess the progress towards achieving the goals as per the recommendations, तो ये भी तो purpose है ना. To comply with 6-step financial planning process, the review being the last step. नहीं, ये नहीं आएगा. And the confirm that the recommendations are as agreed are implemented as per the roadmap. Yep. ठीक है. So अब देखो, first statement तो ये तो है ही, ये तो हमें मेंशन करना ही चाहिए, कन्विंसिंगली ये मेंशन करना चाहिए. Assess the progress towards, ये भी कन्विंसिंगली हमें बताना चाहिए. राइट, ये लॉजिक तो देना ही चाहिए कि क्यों हम मॉनिटरिंग या रीबैलेंसिंग करने की बात कर रहे हैं. तो ये दो तो निकल गए, अब सी और डी मेरे पास बचे. फिर से, सो कंप्लाई विद 6-स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस. हाँ, 6-स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में लास्ट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू तो है, एंड टू कंफर्म दैट द रिकमेंडेशंस एज एग्रीड आर इंप्लीमेंटेड एज पर द रोड मैप. तो सीधी सी बात है कि मुझे डी तो लॉजिक देना ही पड़ेगा कि हम डेली तो मिलने नहीं वाले हैं. सो राइट, वी आर गोइंग टू रिव्यू द प्लान वंस इन अ क्वार्टर, तो एटलीस्ट हमें चेक तो करना पड़ेगा ना कि रिकमेंडेशंस एज पर द रोड मैप अभी बराबर है या नहीं है. तो ऑब्वियसली कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेप तो मॉनिटरिंग है इसलिए करना ही पड़ेगा. नो, सो दैट पार्ट वी शुड नॉट मेंशन. दिस शुड नॉट बी मेंशन्ड कि नहीं हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में इसीलिए करना पड़ेगा. नो, सो वी हैव टू गिव लॉजिक ऑफ रेकमेंड मींस मॉनिटरिंग, पीरियोडिक रिव्यू, और उसमें क्या हमें अवॉइड करना चाहिए बताना, तो ये नहीं बताना चाहिए. इट इज लाइक हमारा 6 स्टेप इसलिए हमको करना पड़ता है. नो, नॉट दैट वे. करेक्ट. सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा. मूव फर्दर. सर, यू विश टू, हाँ जी प्लीज सर सॉरी. मूव फर्दर. अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है. नाउ 3 इज अ 3 मार्कर न्यूमेरिकल. हम उसको भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, बट उसके नीचे मुझे 4 मार्क, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन वो थियोरी लग रहा है. तो व्हाई नॉट अ थियोरी क्वेश्चन. सो लेट्स डू अ थियोरी क्वेश्चन वंस अगेन. तो देखो, अब 6 मार्क के क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, राइट. और अगर ये 3 के 3 मेरे सही हो गए तो 6 मार्क तो मेरे आ गए, राइट. एंड विद अ फ्रेश माइंड. ये सब आपको लगता है 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा काफी. दिस विल टेक बिट टाइम. तो इसीलिए इसको फ्रेश माइंड चाहिए. आप लास्ट में इसको जल्दबाजी में हम पढ़ के आंसर कर देंगे तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा. दिस विल टेक व्हाट यू कैन से कॉन्शियस एफर्ट. चलो, अब लुकिंग एट उर्वशीज वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसी एंड कवरेज दे प्रोवाइड, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फ्रॉम द फॉलोइंग. सो जो मैं सुबह से बात कर रहा था, नाउ लेट्स वंस अगेन डिस्कस कि आगे हमने उनका इंश्योरेंस पॉलिसी वाला फुटनोट पढ़ा. नाउ दैट फुटनोट सजेस्टेड दैट शी हैज 3 टर्म प्लान्स like getting over at 50, 53 and 58. But हम इंश्योरेंस प्लानिंग में ऐसा सीखे थे that insurance requirement of an individual throughout the life isn't constant. Right? Initial life में it increases rapidly, but then it should also reduce because as an individual or as individual starts building wealth, then his insurance requirement reduces because वो धीरे धीरे self insurance के towards बढ़ते जा रहा है. So that has been the reason at the age of 50, like say somebody is having huge wealth with him, so he probably won't require any insurance. तो उर्वशी का जो इंश्योरेंस प्लानिंग है वो शायद सही भी हो सकता है. लाइक 50 पे एक 50 लाख का कवर कम हो गया बिकॉज शी हैज असेट्स, देन 53 पे और एक 50 लाख निकल गया बिकॉज शी हैज बिल्ड अप फर्दर असेट्स. चलो, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते, लेट्स सी व्हाट द ऑप्शन सजेस्ट.
So looking at Urvashi's various insurance policies and coverage, they provide what is the most appropriate conclusion from the following. Urvashi needs to take cover against disability and critical illness as she is the only earner in the family and other risks are well covered. चलो तो जल्दी जल्दी हम वो भी देख लेते हैं कि कौन मीन्स किस तरह के इंश्योरेंस उर्वशी के पास है. लेट्स सी. सो फर्स्ट इज दैट कि उनके पास इंश्योरेंस प्रीमियम इज फुटनोट नंबर 3. सो लाइफ इंश्योरेंस कवर तो मस्त है, 1.5 करोड़ का है. नाउ फोर्थ इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. सो लुक एट इट. ओ माय. सो 20 लाख रुपए का तो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस. सर एक डाउट है यहाँ पे. हाँ. Normally when we estimate the insurance requirement, we will do the HLVC या income या वो दूसरा वाला expense replacement वाला method ना. So यहाँ पे without doing it, can we simply directly go and say कि ये 1.5 करोड़ काफी है? नहीं, सी आई कैन से कि अगर हाँ यहाँ पर 15 लाख 20 लाख होता था, मैं पहले ही बताता कि नहीं, इंट्यूटिव बात है ये कि 10-15 लाख रुपए तो इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए. 1.5 करोड़ इंश्योरेंस आइडियली लाइक इनकी इनकम के लिए रेट उतना भी कम नहीं है. 25 लाख सैलरी है तो एटलीस्ट आप गिनो तो 6 टाइम्स दी सैलरी तो इंश्योरेंस है उनके पास, लाइफ इंश्योरेंस. सो इसको हम इनएडिक्वेट नहीं बता सकते, समझो. सो इंश्योरेंस तो है. सो पहली एफर्ट ये इंश्योरेंस को करेक्ट करने के लिए करनी चाहिए, ऐसा नहीं है. देन हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो डिसेंट. 20 लाख रुपए की 2 पॉलिसी है. वन इज फ्लोटर 10 लाख कवर एंड खुद अनदर तो खुद के लिए ही है. सो दैट इज ऑल्सो डिसेंट नंबर. एंड और कोई इंश्योरेंस के बारे में बात की गई है. कार का इंश्योरेंस तो होगा ही होगा, मैंडेटरी इंश्योरेंस है. ठीक है. सो व्हाट वी कैन सी हियर इज कि उर्वशी नीड्स टू टेक कवर अगेंस्ट डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकल इलनेस, क्योंकि वो इंश्योरेंस की बात आगे नहीं की गई. बट हाँ, ये बहुत जरूरी भी शायद हो सकता है बिकॉज शी इज द ओनली वन. डिवोर्स है, 2 बच्चे हैं, राइट. सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. सो यस, दिस कैन बी द आंसर. और जब ए सेंटेंस सही आंसर में आ जाए ना तो टेंशन बढ़ जाता है. सो उर्वशी हैज टू टेक पर्सनल एक्सीडेंट कवर विच इज रिक्वायर्ड एज शी ड्राइव्स हर ओन कार. अभी लाइफ इंश्योरेंस तो है ही है, कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम, डेथ हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, पर्सनल एक्सीडेंट कवर could be. चलो, Urvashi's life cover falls drastically after 53 years of age. She needs additional cover till 60 years of her age. I would say नहीं. ये उनका ये strategy ठीक है. So this is not the answer. What is the most appropriate conclusion कि उनको इंश्योरेंस और ले लेना चाहिए because 53 के बाद इंश्योरेंस कवर कम हो रहा है? No, I don't agree with that. And Urvashi needs comprehensive householders policy. ये भी नहीं. क्यों? घर ही कहाँ है? ठीक है. ए लुक्स रेलेवेंट, ए ही बराबर लग रहा है. ए ही लग रहा है मेरे पास. देखो, मैंने बताया कि 2 सेंटेंस हमें एलिमिनेशन रूल पे चल रहे हैं, तो सी और डी तो आंसर नहीं है, राइट. ये मुझे लग रहा है बिकॉज उनके और कोई लाइक उनके बिलोंगिंग्स का भी डेटा कहाँ है? क्वेश्चन में है कुछ डेटा. तो उनके घर में ऐसा बताओ कि इतना महंगा फर्नीचर चाइना से इंपोर्ट किया हुआ पड़ा हुआ है, ये है वो है. ठीक है, देन वी वुड हैव कंसीडर्ड कि हाँ बिलोंगिंग्स का भी इंश्योरेंस चाहिए, बट ऐसा कुछ डेटा हमारे पास है नहीं. अब मेरे पास बचे 2. अब मुझे बताओ कि कौन सा लेना चाहिए? पर्सनल एक्सीडेंट लेना चाहिए या डिसेबिलिटी लेना चाहिए? ए सर, ए डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस इज मस्ट. हो गया ना? मस्त है, क्लियर हो गया. मेरे लिए काम ये रिलेटिवली आसान हो गया. देखो, एग्जाम में वैसे हेल्थ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं करता है क्या? नहीं, आपको राइडर लेना पड़ता है. टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस में उनका जो हाँ ट्रीटमेंट का है वो राइडर नहीं है, जो आपका पॉलिसी कवरेज में वो मिल जाएगा आपको. हाँ, करेक्ट. ठीक है. चलो, तो अब यही पेज पे लाइक आई कैन ऑल्सो पुट सम हैंड्स ऑन स्मॉल न्यूमेरिकल्स. ये भी हो सकता है, बट बचे रहना है. 5 मार्क तो आएगा तो हम स्किप कर देंगे. सो इनिशियली आई कैन ऑल्सो स्किप 4 मार्कर क्वेश्चंस. चलो, उर्वशी विश टू अवेल हाउसिंग लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 70% ऑफ द वैल्यू. ये 3-3 मार्क वाले क्वेश्चन करने से क्या होगा पता है? कॉन्फिडेंस आएगा.
थियोरी करने से यू आर स्टिल 50-50 कि हाँ मुझे लग रहा है कि सही है, बट यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा मिलेगा कि नहीं अपने न्यूमेरिकल में आंसर भी आ गया तो ये ठीक होगा. So Urvashi wished to avail housing loan to the extent of 70% of the value of the desired house in 3 years. ये तो ठीक है, वो हमको गोल में लिख के दिया हुआ था. She wants to fully repay the loan by the time she intends to retire. चलो, तो उनकी एज अभी कितनी है? 34, और आगे हमने पढ़ा था गोल में कि she wants to retire at the age of 55. This thing we read. You consider 8.5% per annum as the average interest rate on the housing loan to be availed. ठीक है, तो ये रेट भी हमको दे दिया. She asks you by how much EMI on the loan would exceed current monthly outgo towards house rent. अब मेरे पास तो प्रिंट है, मैं बताता हूँ आपको कुछ चीजें. आई एम नॉट स्विचिंग इट. उनका अभी हाउस रेंट कितना है? सो दैट आई कैन सी इज 35,000 इज रेंट. 35,000. उनकी एज 34 हमने ठीक लिखी है, और शी वांट्स टू, और पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा भी था कि दैट शी वांट्स टू रिटायर एट द एज ऑफ 55. ठीक है. अब जो गोल था उनका पहला, मैं दिखाऊं आपको? चलो दिखाता हूं. सो लेट मी शो दैट गोल. So purchase house in next 3 years, costing currently 1.25 crore. Provide for own funds to the extent of 30% of market value then. ठीक है. तो अब inflation के क्वेश्चन बनते हैं. वन इज दैट कि क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो 30% के लिए आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? दैट कैन बी वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. अनदर यहाँ पर ऐसे दिया है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है वो तो मुझे बताओ. Then we can start solving it. Let us come back to the question and suggest. पूछा क्या था? अगर 3 साल बाद लोन लेने के, if once she has taken a loan, the EMI that she pays, how much will it be more than what she is currently paying for the rent? Correct. और currently नहीं, उस टाइम का रेंट, मतलब रेंट अगर अभी का दिया है तो इन्फ्लेशन से बढ़ाना पड़ेगा. Agreed. ठीक है. अच्छा, तो इसमें मुझे ये भी बताओ साथ में कि कितने पीरियड की लोन लेने की बात है? 18 साल. नहीं सर, रिटायरमेंट तक. Up to retirement, sir. अब टू 18 साल ना. 21 या कब लेने का प्लान करा? 34 या 37 पे? 3 साल बाद. बस अब 18 साल होगा. 34 wants to get rid of the loan at her age of 55. अब 21. नहीं, 18. घर लेना है at her age 37. Correct. बस यही पूरे क्वेश्चन का कैच है. 18. Right, so she wants to take loan for 18 years. ये कैच है क्वेश्चन का. क्लियर? Yes. बस तो अब तो मेरे लिए चीजें काफी आसान है. सो आई विल शो दैट थिंग वंस अगेन. अब इधर ही सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो करंट वैल्यू ऑफ हाउस कितनी है? 1.25 करोड़. अच्छा, अब रियल एस्टेट एप्रिसिएशन रेट कितना है? 4.5. नहीं सर, 6.50. 6.5. हाँ, कहाँ पे? ये रहा. अच्छा. ओके. ओह, ओके. 6.5% रियल एस्टेट एप्रिसिएशन रेट. चलो, तो अब हम लेते पीवी इज इक्वल टू 1,25 लाख. स्टैम्प ड्यूटी नहीं ले रहे? सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी नहीं ले रहे क्या? सब आ गया ना इसमें. ये 1.25 में 30% इंक्लूडेड है क्या? आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे पता नहीं. आई हैव नो आइडिया. नहीं, कुछ तो जीरो आइडिया बोल रहा. अभी आप बोल रहे तो आइडियली सर इसमें वो रेडी होना चाहिए ना. हाँ, घर लेना है ना 1.25 करोड़ का. अब 1.25 करोड़ में 70% लोन लेंगे, बाकी का 30% ओन फंडिंग करेंगे. 150. नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर. मैं ये बोल रहा था कि
1.25 करोड़ में 30 स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूडेड है या नहीं है? इंक्लूडेड। हाँ ठीक है देन इट्स फाइन। हाँ चलो, प्रीति योर सजेस्टिंग आंसर। 150,99370. 1.5 CR. ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ Civil need. रियल हाउस। अब इसका 70% इज लोन अमाउंट। 105,69559. This is the amount of loan. 1,25,467 इसका EMI। अब इस पे 8.5% की लोन थी, राइट, जो हमने आगे पढ़ा। सो दिस शेल बी टेकन एज पीवी इज इक्वल टू कितना लेंगे, 18 into 12, 18 साल जो हमने ढूंढा था। Then I by phi is equal to 8.5 divided by 12, and let us find out PMT in end mode essentially. 125,467। Sir, 125,467। So I'll wait for some more answers. है 95,702 है क्या? 905,029। हाँ मेरे को भी 95,702 95 95,702 सर। 702। रेंट का ग्रोथ अप्रिसिएशन विल ग्रोथ सेम इन्फ्लेशन रियल एस्टेट का अप्रिसिएशन में ही ग्रो करेगा? नहीं, अभी वो देखते हैं कि क्या बताया गया है हमें, वो पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार, है ना। हमेशा आप सॉल्यूशन आप ढूंढ लो, उसके बाद इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। एग्जाम 5 में तो पक्का। हिरेन भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग? नहीं सर, आई डोंट नो। अभी अच्छा। आ रहा है 95, मे बी एरर होगा, कुछ डेटा पड़ा होगा। ठीक है, आ गया ना अभी? यस सर, 95,702। ओके, इतना तो हम ढूंढ चुके हैं। अब ये पूरा खिचड़ी में हम कहीं पे थोड़ी जगह बना के पढ़ते हैं। हाँ, हाउ मच EMI on the loan would exceed her current monthly outgo towards rent? अच्छा, तो रेंट माइनस करेंगे तो 60,000। कौन सा? 35,000। 35,000 देंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विक मार देंगे कि हाउ मच EMI on the loan would exceed her monthly outgo towards then rent. तो एफए निकालेंगे करंट रेंट का 3 साल बाद क्या है, फिर माइनस करेंगे। करेक्ट। क्या बोला आपने? व्हाट आई सजेस्टेड वाज कि यहाँ पर तो क्लियरली हमें बताया था कि करंट मंथली रेंट के सामने एडजस्ट करना है, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा बताया कि आपको 3 साल के बाद जो रेंट होता है उसके सामने एडजस्ट करना है, तो आपको फिर रेंट को इन्फ्लेट करना पड़ेगा। बट कायदे से प्रैक्टिकल में हम करंट नहीं देखेंगे ना, करंट नहीं टाइम देखेंगे। आई एग्री। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है? 6703। हाँ, सो यस, दैट आंसर इज D for Delhi। बट हाँ, वैसे देखो तो इजी। सो टू इंटरेस्टिंग कैच इन दिस क्वेश्चन इज ये एज वाला 18 वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू टेक 21 तो भी कोई ऑप्शन तो पक्का मैच करा देंगे। आई थिंक इट कुड बी B। 56 तो होने का चांस हो भी सकता है, शायद इतना डिफरेंस हो भी सकता है, बट कुछ तो मैच हो रहा होगा। सो इफ यू टेक इंस्टेड ऑफ 18 years लोन 21 years लोगे तो B और C में से कुछ तो मैच होगा।
So this is the critical point of the question. And फिर finally as I said कि एक बार न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर ले, पूरा आंसर भी आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेना जरूरी है one time at least, so that we find out the correct one. Now let's move further and solve question number 5. अगर हम ऐसे देखते जाए तो हम 9 मार्क का पेपर तो अटेम्प्ट कर चुके हैं अभी तक. 6 मार्क के थियोरी और 3 मार्क का न्यूमेरिकल. डिफिकल्टी लेवल यही रहता है. हाँ, इसके आसपास ही है. See, it is all about planning. If somebody says exams are too tough, I don't agree at all. एग्जाम उतने मुश्किल नहीं होते हैं, बट आपको प्लानिंग से पेपर सॉल्व करना है. प्लानिंग एंड प्रिसिशन दो चीजें बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम पास करने के लिए. बाकी कोई कुछ भी तरह तरह की बातें करे, एवरीथिंग इज फॉल्स, फेक एंड मिसगाइडिंग. प्लानिंग तो छोटे छोटे बच्चे आप समझो कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं रूटीन में, लाइक जो मेरे वीकडेज बैच में आते हैं, दे आर FY स्टूडेंट्स एंड इजीली दे क्लियर. क्यों? उसका रीजन वही है कि उनको प्लानिंग परफेक्टली बिठा देते हैं और दूसरा प्रिसिशन पे काम करते हैं, तो पास हो जाते हैं. तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेटिवली काफी कम होता है, फिर भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं. बस वही है, थोड़ा प्लानिंग. चलो अब 9 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर चुके, वो 3 मार्क का क्वेश्चन करके हम 12 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे. एंड थिंग्स आर गोइंग राइट, तो हम मान लो कि 12 मार्क तो स्कोर कर चुके हैं जस्ट इन टाइम which is less than half an hour. Urvashi wants to create a trust that would receive a corpus in case of any eventuality with her life towards managing her children's living educational expenses estimated at 10 lakh annually. Inflation adjusted at 8% annual escalation till her younger child attains 27 years of age. The expenses are supposed to be drawn from debt instrument. What additional insurance cover do you estimate? चलो ये क्वेश्चन हमने एक बार फटाफट पढ़ लिया एंड वी आइडेंटिफाइड ये इंश्योरेंस का क्वेश्चन है. एंड बस माइंड में क्लियर है कि इंश्योरेंस के क्वेश्चन में तो पूरे मार्क आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. ठीक है, लेट अस रीड इट वंस अगेन. अभी इंश्योरेंस का है तो माइंड में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि ये आसान होगा, ये मुश्किल नहीं होगा. Urvashi wants to create a trust. एक ट्रस्ट बनानी है that could receive a corpus in case of any eventuality with her life. उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए तो पैसा ट्रस्ट में चला जाएगा, और वो पैसा किस चीज के लिए यूज होगा? मैनेजिंग हर चिल्ड्रंस लिविंग एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस estimated at rupees 10 lakh annually, inflation adjusted at 8% escalation till her younger child achieves 27 years of age. बहुत सिंपल है. डेटा मुझे मिला 10 लाख का. यंगर चाइल्ड की एज क्या है अभी? 13 years. 9 years. 9 years. कुरियांश जो है वो 14 years का है एंड ध्रुवी इज 9 years. तो यंगर इज 9 एंड अप टू 27. पीरियड कितना है? 18 years. Yes. ठीक है, अब 10 लाख आप पढ़ो कि ये ईच है या टोटल है. That is the critical point of the question. टोटल है. टोटल सर जो टोटल है, बिकॉज इसने यहाँ पे मैनेजिंग हर चिल्ड्रंस लिविंग. ईच लिखा नहीं है तो ये बोथ का है, हो गया ना. और 8% मेरा क्या है? सॉरी, इन्वेस्टमेंट रेट है. ठीक है, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड की बात की गई है, तो इन्फ्लेशन कितना है क्वेश्चन में? जनरल इन्फ्लेशन ही होगा ना यहाँ पर, तो या कौन सा इन्फ्लेशन होगा? देखो, लिविंग एंड एजुकेशनल बोथ साथ में. सो देखो, जनरल इन्फ्लेशन इज 4.5. दिस कुड बी, बट आगे ऊपर धीरे धीरे पढ़ लेते हैं कि उनका question doesn't indicate anything. So living and educational expenses is estimated at 10 lakh. Inflation adjusted at 8% escalation. चलो तो मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ. एक्चुअल में मैं ठीक लिख रहा था, फिर से मैंने
गलत कर दिया, आज भी हमारा रेट के साथ सेटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक्चुअल में इन्फ्लेशन रेट है, 8% एस्केलेशन है। और पैसा, अब देखो और एक चीज मेरे पास बाकी है क्वेश्चन में ढूंढने के लिए कि अब इंश्योरेंस का जो पैसा आएगा वो कहां पर इन्वेस्ट होगा, वो मुझे आखिरी चीज ढूंढ लेनी है, डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट। चलो, तो अब डेट का रिटर्न हम ढूंढ लेते हैं केस स्टडी में से। सो हाउ मच इज दैट डेट रिटर्न? 7.5. 7.5%। 7.5। चलो परफेक्ट, तो मेरे पास अब ये क्वेश्चन का पूरा डेटा आ चुका है। सो 7.5% इज इन्वेस्टमेंट रेट। ठीक है, डन विद इट, क्वेश्चन हो गया मेरा। सब मुझे करना क्या है, आई हैव टू टेक PMT इज इक्वल टू 10 लाख। कौन से मोड में? बिगिनिंग मोड में। एंड कितना चाहिए? 18। I by 5 is real rate of 7.5 and 8, and let us find out PV. That's it. सर माइनस में आएगा। हाँ, आने दो। 187295994। That is one। हमारा आंसर तो लाख करोड़ में ही है, तो कितना आया? 1.87 करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसको करोड़, because हमें लाख करोड़ में ही लाना है, तो 1.87 करोड़ इज दी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट। डन। Yes. अब ऐसा तो 1.88. हाँ 88 ले लो, 87 ले लो, ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं। बट अब फिर से एज आई सेड कि यहाँ पर जरूरी तो है कि एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, रीड द क्वेश्चन वंस अगेन, नहीं तो लोचा हो जाएगा। व्हाट एडिशनल इंश्योरेंस कवर? 37 lakh. ठीक है, तो उनके पास कितना इंश्योरेंस है, हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस तो है। सो 1.5 करोड़ इज द एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, तो बैलेंस कितना बचा? 37 लाख इज द एडिशनल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, एंड आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। राइट, सो दैट्स द होल आइडिया कि ये जो छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत इजीली टुवर्ड्स पासिंग लेके जाती है, उसमें एक्यूरेटली काम करना है, एक एक चीज ध्यान से पकड़ के पढ़नी। और ये सब चीजें कब पढ़ पाओगे? एट फ्रेश माइंड। और ये सब क्या 2-2 3-3 मार्क फटाफट स्कोर होते जाएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा कि नहीं, आई एम एबल टू स्कोर, मेरा स्कोर बढ़ गया है। सो 12 मार्क में अटेम्प्ट कर चुका हूँ, 5 मार्क का एक क्वेश्चन आधा घंटा पौना घंटा ले लेगा और यू एंड अप डूइंग इट रॉन्ग, तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ, ये करेंगे थोड़ी देर के बाद, विल कम बैक टू इट, क्योंकि मुझे नीचे 3 मार्क का क्वेश्चन दिख रहा है। सो आई बेटर बी डूइंग दिस 3 मार्क का क्वेश्चन। Urvashi wants to fix a retirement goal by her age 45 years by buying a 10-year deferred annuity product which shall provide cash flow as per her retirement goal. What funds do you estimate to buy the deferred annuity of yield 6% per annum? फटाफट इसकी टाइमलाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो उर्वशी राइट नाउ 34 इयर्स की है। She wants to fix her retirement goal by her age 45. She wants to retire at the age of 55. 10 साल की डिफर्ड एन्युइटी प्रोडक्ट है जिसका रेट ऑफ रिटर्न भी मुझे दिया गया है। What funds do you estimate to buy the deferred annuity? इसका 6% rate of return है। She wants to retire at 55, and quickly I would find out her life expectancy to be 85 years. तो ये पीरियड मेरा कितना है? 30 years। ठीक है, कोई नहीं, मुझे प्रोडक्ट यहाँ पर खरीद लेनी है, तो सबसे पहले तो मैं कॉर्पस किधर लेके आ जाऊंगा? टिपिकल 3 स्टेप जैसा ही क्वेश्चन है कि एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड फाइंडिंग आउट कॉर्पस। ओके, अब रिटायरमेंट का गोल जो हमारे पास है, राइट, सो रिटायरमेंट के गोल में दैट इज गोल नंबर 4, आई एम रीडिंग दैट फॉर यू। रिटायरमेंट एज 55 to provide for current lifestyle at rupees 1 lakh monthly till her expected life. So current expenditure कितना है? 1 लाख।
ठीक है, wants to retire at the age of 55. तो ढूंढो estimated expense. How much is that estimated expense for her? सर एक डाउट है यहाँ पे. पूछो ना. If there are multiple expenses growing at different rates, तो वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा क्या इन्फ्लेशन का? हाँ सर. मतलब मल्टीपल एक्सपेंसेस ग्रोइंग एट डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स. नहीं यहाँ पर, हाँ नहीं क्यों वेटेड एवरेज? ये तो रिटायरमेंट गोल है ना. नहीं सो ये जो 1 लाख का जो बोल रहे हैं ना एक्सपेंस, मान लो 1 लाख में से 10,000 रुपया मेडिसिन का खर्चा है मान लीजिए, एंड मेडिसिन का एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन नॉर्मली ज्यादा होता है. तो इन रियल लाइफ सिनेरियो पूछ रहा हूँ. हाँ नहीं, अभी रियल लाइफ को करते हैं. रियल लाइफ विल टेक केयर ऑफ इट. बट अभी ये क्वेश्चन पे हम इसको फटाफट सॉल्व करके फिर आपके क्वेश्चन को मैं लेता हूँ रियल लाइफ का. तो यहाँ पर हम इन्फ्लेशन क्या लेंगे? 4.5. यस, जनरल इन्फ्लेशन, क्योंकि हमें और कुछ तो दिया नहीं है. लाइफस्टाइल बढ़ रही है, ऐसा कुछ करंट लाइफस्टाइल ही चाहिए. चलो तो मुझे बताओ एस्टिमेटेड एक्सपेंस कितने आ रहे हैं हमारे? 252024. यस, यहाँ पर एक्सपेंस आपका आया 25 मींस 2,52,024. करेक्ट? यस सर. सबका आंसर सेम. अब मुझे क्या ढूंढना है? कॉर्पस फॉर हर एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 30 years. इज इट मंथली और एनुअली? Annually. मंथली. Sorry, monthly. चलो, so I take this amount as PMT in beginning mode. ठीक है, n कितना लेना है मुझे? 360. 360. That's right. रेट हम जो नॉर्मली करते हैं वैसे ही कर देते. आई बाय वाई कितना लेंगे हम? रियल रेट कौन सा? 6 और 4.5 का. एंड लेट अस फाइंड आउट ईवी. टिक चल रहा है. मुक्तिराज भाई. ये रहा है सर. हाँ. Let us find out this corpus. $1.7 crore. So answer is 7.38 crore. आगे भी है कुछ, but yes, we round it up. सर हमारे 7.36 आ गए सर. Do it in beginning mode, everything. No, you have to get this answer. You do it again and take all the decimal points. Sir, 7.37 आया. Okay, so now this is the amount you need at the end of or at her age 55. 55. अब क्वेश्चन में क्या बताया है कि आज कितना इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए. डिफर्ड एन्युइटी प्लान की बात है और लमसम है या मंथली है? डिफर्ड. हाँ, डिफर्ड एन्युइटी है, बट इसमें हमें आज इन्वेस्टमेंट. Lump Yes, wants to fix a retirement goal by her age 45 by buying 10-year deferred annuity product which shall provide a cash flow.
So what funds do you estimate to buy the deferred annuity? तो हमें lump sum पूछा हुआ है. ये कैसे पता लमसम है? सॉरी. Because what funds you estimate to buy the deferred annuity means हमें यहाँ अच्छा, पर ही okay. कितने ऐसा पूछा हुआ है. ठीक है. फाइन, बस तो इसको FB करके PV ढूंढ लो for 10 years at 6%. इसका PV ढूंढ लो. B for Bombay. 412. 412. 412 करेक्ट. सो प्रैक्टिकली देखो तो ये क्वेश्चन में कोई कैच ही नहीं था. ये सिंपल क्वेश्चन था. Correct? Yes, sir. Easy things to be done first. So 9 number का question. Urvashi is investing through SIP in equity and debt mutual fund schemes instead of taking direct exposure to equity shares and corporate bonds. Which of the following risks are sought to be reduced in her investment mode? Means कौन से risk ये structure में वो कम कर रही है. So first is that कि market risk and interest rate risk म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, ये किसका एग्जांपल है? दिस सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क तो कम होने नहीं वाला है, तो बी और सी तो क्लियर कट निकल गए. सिस्टमैटिक रिस्क. क्रेडिट रिस्क, गवर्नमेंट एंड कंप्लायंस रिस्क, ये भी सिस्टमैटिक रिस्क है, तो ये भी निकल गया. तो बचा जो भी है वो ए ही है. वो क्या है? इफ यू डोंट नो, स्टिल ए इज द आंसर. प्रॉब्लम क्या होता है कि वंस वी क्रिएट पोर्टफोलियो, so what is the concentration? Portfolio concentration. Portfolio concentration means probably आप सबके portfolio में 20 companies के shares है, say for example. Overlap. But जो 5-6 shares होंगे ना, that is having major holding. They are having major impact on your portfolio. And ये mutual fund में भी होता है. But mutual fund से individual portfolio में ये risk ज़्यादा होता है. Because you'll find out like somebody is having 10 lakh portfolio, तो आप उसके top 5 holding का total करेगा वही 6-7 लाख होता होगा. और बाकी सब चिल्लर में है. So that means that portfolio is highly concentrated portfolio. So by getting into mutual funds, at least you are reducing that risk. And one more thing is that like liquidity risk mutual fund में तो होता ही नहीं है. So you can liquidate your money at any point of time. So unless it is closed-ended. That is logical. So और SIP कर रही है तो closed end में हाँ वो तो है. Correct. हो नहीं सकता है, right? So हाँ अच्छा, SIP में closed-ended में SIP नहीं कर सकते ना, पूरा लमसम ही होगा. नहीं कर सकते हैं. हो सकता है. How can you do SIP in closed end fund? If you can explain, if you are not buying units through market. कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. नहीं, अब तो ये समझाओ आप मुझे सीरियसली. सही में सर. वेरी नहीं सर, नहीं हो सकता. नहीं होता है ना. ठीक है. सर मैं ELS से समझा. ELS. ELS, I got the same word. Yes. ELSS is open ended. Yes. But with lock-in period on exit. Right? चलो. So कितने मार्क हमारे इकट्ठे हो गए? 17. बोलो. और इतने लाइटली हो गए विदाउट पुटिंग मच एफर्ट. अब आगे ढूंढते. अभी तो 12 तक ही पहुंचे ना. चलो अभी तो 13, 14, 15 में कुछ हमारे लिए और भी बचा होगा जो हम ले सकते हैं, है ना? यस है. चलो आ जाओ. 13 नंबर का क्वेश्चन. Urvashi, in case of her life contingency, means in case of her death, is apprehensive about managing the affairs of her children. So ये क्वेश्चन इतना पढ़ के समझ में आ गया कि ये estate planning का है. True. You advise her to set up a common minor beneficiary trust for Suryans and Dhruvi. तो minor beneficiary trust भी हम पढ़ चुके थे estate planning में. This is essentially created for minor children, and yes, that is to meet their specified goals as suggested
at the time of creating trust and money is paid once they achieve desired age. तो ये minor beneficiary trust का concept था. What do you put forth as your argument? Right, so minor beneficiary trust बनाने से क्या फायदा होगा ये हमें इनको बताना है. चलो फिर से एलिमिनेशन, लंबे लंबे सेंटेंस है तो एलिमिनेशन रूल हमारा काम लगना चाहिए. ओके, लेट्स गो. Such a trust shall protect assets transferred and shall manage them as per guidelines issued to the trustee until either or both her children reach or reaches a specified age to be defined by Urvashi. ये सेंटेंस सही लग रहा है, गलत लग रहा है? तो सही लग रहा है. मुझे भी सही लग रहा है. सुबिन, एनीबॉडी एल्स? सॉरी सर, एस्टेट प्लानिंग अभी तक सीखा नहीं. ये तो डिट्टो मैंने जो बताया वैसे ही सेंटेंस लग रहा है. सर ये सही लग रहा है, आपने जो बोला वही है. हाँ, मैंने वही बी भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है, बट ए ज्यादा कन्विंसिंग है. रैंडमली बताया, वो ये सही लग रहा है. चलो, तो ये तो सही लग रहा है. इसको स्टिल आई एम नॉट टेकिंग, आई हैव टू रीड फर्दर स्टेटमेंट्स. Such a trust shall protect and manage assets for children only until the individually reach majority, that is age 18 years. This could be, इसको हम 50-50% ले सकते हैं. Such a trust shall not take further resources, assets, inheritance once the benefit have been transferred to it and the guidelines specified by Urvashi for their use. सर ये पता नहीं चल रहा. आगे बढ़ते जाते हैं. Such a trust, बट उस मैं पढ़ लेता हूँ. ये such a trust shall strictly prevent early distribution of assets before both Suryansh and Dhruvi ये तो गलत है. maturity of 18. ये तो एकदम गलत है. हाँ. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा तो बीच में उनकी डेथ हो गई तो बच्चों का क्या होगा? So we want regular expenses to come from trust. तो डी तो गलत है. तो डी तो गलत हमने निकाल दिया. अच्छा, अब सी. हिरेन भाई, यू आर सेइंग समथिंग. नहीं सर, मैं ये दूसरे के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर ये डिस्क्रिशनरी और मतलब कौन सा था, डिटर्मिनेट. यस. हाँ, तो इसमें से कौन सा है वो मैं बस पूछ रहा था. ठीक है, अब सी पे आते हैं. Such a trust shall not take further resources. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था ये सी पे कि अगर ये सर डिटर्मिनेट है, एक बार सर उन्होंने ट्रस्ट बना दिया डिस्क्रिशनरी, तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा ना, टिल एंड अनटिल ट्रस्टी टेक्स एनी डिसीजन. बट अगर डिटर्मिनेट है देन इट कैन बी चेंज्ड एज पर टेस्टेटर विश. हाँ, यस. इसमें देखो दो था हमारे पास. एक डिस्क्रिशनरी था wherein the rights were given to trustee in terms of what amount to be paid to the beneficiary, and another is determinate wherein जिसने बनाया वो फिक्स कर देता है and then trustee has no say. Right? And such trust shall protect and manage assets for children only until they individually reach majority, that is age 18 years. तो हमारे पास 3 सेंटेंस इस बार तो धुआंधार है कि जो थोड़ा हमें फंसा है. Further resources नहीं लेगी once the benefits have been transferred to it and the guidelines specified by Urvashi for their issue. अब ये सेंटेंस में अगर हम डिटेल में थोड़ा पढ़े, so such trust shall not take further resources. अच्छा, और कोई रिसोर्स भी नहीं लेगी, ट्रस्ट भी नहीं लेगी, इनहेरिटेंस भी नहीं लेगी once the benefit have been transferred to it. ये अब ये समझ में नहीं आया कि what benefits have been transferred to it. सर मान लो इन दैट केस व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक बार उर्वशी ने वो ट्रस्ट बना दिया, बराबर, तो एज ऑन टुडे जो प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज जो उनके पास था, बराबर, वो उन्होंने ट्रस्ट बना के दे दिया ट्रस्टी को टू मैनेज इट. करेक्ट. बट उनके बाद उनकी डेथ हो गई और उर्वशी की इनहेरिटेंस में कुछ उनको मिला, तो वो ट्रस्ट में शिफ्ट होगा कि नहीं? दैट इज व्हाट इज दिस सेंटेंस बता रहा है ये. करेक्ट. बट ये स्टिल ये बेनिफिट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, ये असेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू इट.
ये थोड़ा ये टर्म मुझे गड़बड़ वाला लग रहा है. So you can think through. And such a trust shall protect and manage assets for her children until they individually reach majority, that is of 18 years. और हम कौन सी ट्रस्ट बना रहे? कॉमन. minor beneficiary trust. So such a trust shall protect assets transferred and shall manage them as per the guidelines issued to trustee until either or both of her children reach or reaches a specified age to be defined by Urvashi. तो अब सर तो फिर ये पहला वाला इधर लिखा गलत है। होगा ना. नहीं, इधर लिखा है तो गलत होगा ना। इधर और बोथ है ना. और हाँ, यहाँ पे कॉमन बेनिफिशियरी है, कॉमन माइनर बेनिफिशियरी. हाँ. सो यहाँ पर एक ट्रस्ट में से दोनों माइनर का हम बेनिफिट ले रहे हैं. सो दैट इज हाउ कॉमन माइनर बेनिफिशियरी हुआ. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पर देखो ए और बी में स्ट्रिक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि 18 तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा. ए और बी में स्ट्रिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कहां पर है कि बी बता रहा है कि 18 साल की एज तक ही होगा, उसके बाद ट्रस्ट शुड कम टू एन एंड, राइट. एंड सी सेज कि इसमें और कोई रिसोर्सेज नहीं जाएंगे एक बार बेनिफिट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देम. सो बेनिफिट यहाँ पर ट्रांसफर करने की बात नहीं. आई थिंक दे शुड हैव टॉक्ड अबाउट असेट्स एंड गाइडलाइंस स्पेसिफाइड फॉर देयर यूज. सो अब आप मुझे थोड़ा गाइडेंस दीजिए कि इसमें आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर मैं सही आंसर बताता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है. बी सर. A sir. बी बी. राइट. ये माइनर ट्रस्ट है तो 18 तक ही चलेगा. 18 तक ही चलेगा, आई एग्री. बट यहाँ पर रीचेस स्पेसिफाइड एज, ये बेटर आंसर है बिकॉज एज डिफाइंड बाय उर्वशी. True sir. राइट. सो इसका करेक्ट आंसर ए और बी एकदम कट टू कट स्टेटमेंट है. सो सी भी मैं निकाल ही दे रहा हूँ. ए और बी एकदम कट टू कट स्टेटमेंट है. आपको यही सोचना है कि द ट्रस्ट शैल प्रोटेक्ट असेट्स ट्रांसफर्ड एंड शैल मैनेज देम एज पर द गाइडलाइंस issued to the trustee until either or both reach a specified age to be defined by Urvashi. तो उर्वशी जो डिफाइन करेगी वो एज तक ये ट्रस्ट चलेगी. And trust shall protect and manage assets for her children until they individually reach majority, that is 18 years. अब ए और बी में थोड़ा हम प्रिसाइसली पढ़े तो ए मुझे मोर करेक्ट ही लगता है बिकॉज उसमें थोड़ा ज्यादा एलोबरेटिव मीनिंग दिया गया है मुझे. वहां पे क्लैरिटी दी है कि उर्वशी ने जो बताया है वही एज पे उनको वो मिलेगा बेनिफिट. सो दैट सर तो ऐसे क्वेश्चंस कट टू कट उसमें जो ज्यादा एलोबरेट हो वो पिक करने का. हाँ, मीन्स आपको फिर मोर करेक्ट लेना है. राइट. सो दैट इज बीन द रीजन ए इज करेक्ट. ठीक है. चलो. सो मजा आ गया ये करके. अब यहाँ तक पहुंचे ही है तो और एक 3 मार्क का क्वेश्चन तो कर ही लेते, फिर 4 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते. सो हमारे पास सब 3 मार्क 4 मार्क और 3 मार्क 2 मार्क का कोटा खत्म. Urvashi has 7,500 shares of an unlisted company in physical form, which she acquired in private equity offering at 10 per share in March 2012. She has got an offer to transfer these shares for a consideration of 4,25,000. What would be the tax liability for this transaction for assessment year 2021? बराबर. तो अब केस स्टडी में से हमें कुछ डेटा लेना पड़ेगा ऐसा लग रहा है आपको. चलो मैं पहले ढूंढ लेता हूँ. चलो सेल कंसिडरेशन में कितने में बेच रहा हूँ ये शेयर्स? 4,25,000. चलो सेल कंसिडरेशन 4,25,000. चलो व्हाट्स द गाइडलाइन फॉर अनलिस्टेड शेयर्स? लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? 24 months. Long term है सर. लॉन्ग टर्म है. तो इंडेक्सेशन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर. करना पड़ेगा. सो सब्ट्रैक्ट व्हाट? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. चलो कितने में लिया था हमने? 10 रुपीज में. 75,000. 25,000 में. यस. ठीक है. तो 75,000 into
करंट कितना है 289 और मुझे बताओ इंडेक्स वैल्यू 2011-12 11-12 180. ओके, दैट इज 184. बताओ चलो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया? 1177,980. 1177,980. 7798. परफेक्ट. चलो तो मेरा अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 1 मतलब 3,07,201. How much is the tax rate? 10%. 20%. 20%. Sorry. 20% इसलिए अनलिस्टेड unlisted. है तो 20% सर. हाँ unlisted है तो 20%. चलो how much is it? 614. Sir, it is आंसर 63898. तो है नहीं. नहीं, पहले ये 20% वाला ही बताओ मुझे. 61,440. 440. 61440. 51,440. अब इसमें इंटू 1.04 करने से आपका आंसर बी आ जाएगा. 63,897. So probably this happened to be the easiest question so far. Yes, sir. And you won't believe हम ऑलरेडी 20 मार्क्स प्लस काम तो कर चुके हैं. 20 मार्क्स तक तो पहुंच चुके हैं. 4 मार्क के क्वेश्चन देख लेते हैं. सर 2 मार्क्स में भी डिफिकल्टी फेस की तो फिर गए. नहीं होगी वैसे, बट एटलीस्ट हम उसको टाइम तो दे रहे. प्लानिंग के हिसाब से हम उसको टाइम तो दे रहे, बिकॉज 2 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन के बीच में 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप वैसे ही वो क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाओगे. ऐसा है. तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये सब छोटे क्वेश्चंस ज्यादा टाइम नहीं लेते एंड दे वांट फ्रेश माइंड, तो उसको सॉल्व करने में फायदा है. ये हो गया हमारा. हाँ जी, सर ये 1.04 कैसे? हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाई. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा बढ़ेगा. इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. ये मेरा स्लोगन किसने पकड़ लिया आज? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. करेक्ट. चलो अब हम 4 मार्क के क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन से गोल है. तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है 4 मार्क का पहला, वो इंश्योरेंस का है. ठीक है. अब दूसरा मुझे 4 मार्क का क्वेश्चन ढूंढना है, वो कौन से गोल का है, उसको पकड़ लेते हैं. It is solved. So we do have another 4 marker question that is of मैरिज एक्सपेंस है और इंश्योरेंस का है. तो ये दोनों मेरे लिए मैनेजेबल गोल है. ये गोल में ज्यादा पंगा नहीं होता है. ठीक है. चलो, सो रिटायरमेंट, एजुकेशन, वैकेशन, ये सब थोड़े, और उसमें भी एजुकेशन वैकेशन आए ना तो उसको लास्ट में ही करना चाहिए, वो तो टच ही नहीं करना है. चलो अब 4 मार्क में इंश्योरेंस का क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होता है. ओके, सो वी रीड दिस क्वेश्चन. You in consultation with Urvashi adopt a different yardstick for assessing the adequacy of life insurance. You estimate that 15 lakh in current terms would be enough to sustain the children's sustenance including their specific goals. तो 15 लाख का कुछ हमें यहाँ पर इंडिकेशन दिया है. Urvashi wishes that this amount be incrementally available year on year at 5% escalation to provide income support until respective age of 30 of each child. You estimate drawing this income stream from appropriate mix of debt instruments in which the claim amount would be invested in case of Urvashi's life exigency. What should be the ideal इंश्योरेंस कवर? अब टोटल नहीं पूछ, मींस इंक्रीमेंटल एडिशनल नहीं पूछा है, आइडियल इंश्योरेंस कवर ही पूछा है. चलो, सो दिस इज करेक्ट.
नाउ लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली पूछा क्या है. वन अमाउंट आई कैन फाइंड आउट हियर इज, अभी चलो सूर्यांश की एज कितनी है 14 एंड ध्रुव की एज कितनी है 9. You estimate 15 lakh in current terms, enough to sustain children's sustenance including their specific goals. तो ये 15 लाख अमाउंट ईच है या बोथ है? बोथ है, ठीक है. And it is to their respective age 30. And this has to grow at 5% inflation. और मुझे इंश्योरेंस ढूंढना है. किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे इंश्योरेंस का पैसा? डेट फंड में. सो दैट आई थिंक इज अर्निंग 7.5%. अब बताओ कि ये क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है. तो ये 4 मार्क का बन गया, राइट. सो सी इट इज वेरी सिंपल लॉजिक इन दिस क्वेश्चन कि दोनों है तब तक करंट कॉस्ट 15 लाख है. अब सूर्यांश की एज 30 हो जाएगी, फिर तो उसका विड्रॉल बंद हो जाएगा ना पूल में से, सिर्फ ध्रुवी का विड्रॉल चलेगा. सो आइडियली सिर्फ ध्रुवी रहेगी तो उसकी रिक्वायरमेंट 15 लाख करंट टर्म्स में रहेगी या हाफ ऑफ इट रहेगी? हाफ. इट शुड बी हाफ ऑफ इट. व्हाट डू यू से? ये पता चला. सो मैं लिखता हूं, देखो, आई विल राइट समथिंग एंड देन आई विल शो यू द पावर ऑफ टेक्सास वंस अगेन. क्यों टेक्सास कैलकुलेटर जादू है वो अब यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा once you score this 4 marks in a moment. So 14 से 30 कितना पीरियड? For 16 years you need 15 lakh in current terms. चलो टाइमलाइन 0 से 16 15 lakh per annum, ठीक है, in current terms. और उसके बाद आफ्टर 16 years ध्रुवी की एज कितनी होगी? 30 31. ध्रुवी सॉरी ध्रुवी आई एम सॉरी सूर्यांश, मैं सूर्यांश का बोल रहा था, सॉरी. हाँ ध्रुवी का 5 साल और एक्सटेंड होगा. अभी 25 है 16 25 5 साल और राइट. तो ये पीरियड बोथ है एंड दिस ओनली ध्रुवी, ठीक है. और ये 5 साल का पीरियड है. अब ऑब्वियसली कुछ दिया नहीं है तो प्रोपोर्शनेटली शी विल नीड 7.5 लाख रुपीस इन करंट टर्म्स फॉर लेटर 5 years. डन. तो वही बता रहा हूं कि टाइमलाइन मैपिंग हो गया. अब सॉल्व कर लेते हैं. कैश फ्लो से इजी. हाँ, CF0 15 लाख चाहिए ना. 2.27 करोड़. C1 15 lakh. Frequency 15. पर एनम है. यस. हाँ. C2 7,50,000. Frequency 5. I by Y real rate of कौन से रेट है हमारे पास? 7.5 और 5. पक्का ना? बिकॉज मैं रेट से ही मार रहा हूँ इसलिए फिर से. एंड फाइंड आउट NPV. दैट्स इट. एंड यू हैव स्कोर्ड D for Delhi. I think so. scored a boundary. 4 मार्क बहुत आसान नहीं हुआ. आप आंसर लाओ ना. सर D 2.27. 2.27 हो गया. आसान नहीं है सुबिन, ये टेक्सास के चलते आसान है. This is easy only due to Texas. Okay. हो गया 4 मार्क. डन. और एक क्वेश्चन. और मीन्स लाइक मजा आ गया ये क्वेश्चन करके, तो बहुत आसान है. चलो, कैन वी मूव फर्दर?
So 1 minute. Yes, sir. Yes. Urvashi wants to set aside a portion of her equity portfolio for the marriage of her children as per the goal. अब गोल क्या है बच्चों की शादी का वो पढ़ते हैं. Marriage expenses of 10 lakh, current cost for each child at their respective age 27 and cost escalation 6%. चलो ये तो आसान हो गया, ये डेटा में तो कुछ दम ही नहीं है. 27 के एज पे 10 लाख चाहिए दोनों को इंडिविजुअली एंड कॉस्ट एस्केलेशन 6%. पहले टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते, जितना पता चला उससे टाइमलाइन तो ड्रॉ कर दे, भूल जाए उससे पहले. ठीक है. इन्फ्लेशन 4.5 है सर इसमें. नहीं, इन्फ्लेशन लिखा हुआ था 6% उधर. अच्छा हाँ 6%. ठीक है. तो सूर्यांश को आज से 13 इयर्स के बाद चाहिए. ठीक है. एंड ध्रुवी को आज से कितने साल के बाद चाहिए? शी इज 9 18 इयर्स. ठीक है. चलो तो इतना तो हमको पता चल गया. और 10 लाख करंट कॉस्ट में बराबर 10 लाख लिख लेते हैं. 10 लाख ही था ना? यस सर. यस सर. चलो. You advise to redeem a part of such apportioned portfolio 3 years before the marriage of Suryansh. ब्लॉक जैसा कुछ लगा ना. You advise to redeem part of such apportioned portfolio 3 years before the marriage of Suryansh and invest in secured debenture of coupon 6.5% with 3 years maturity. तो जो भी है सूर्यांश के लिए 10 साल के एंड पे हमें कुछ ट्रांसफर करना है और इसके लिए 15 साल के एंड पे कुछ हमें ट्रांसफर करना है. ऐसे ही बताया ना. यू एडवाइज टू रिडीम पार्ट ऑफ अपोर्शन पोर्टफोलियो. अपोर्शन पोर्टफोलियो कहां पर गया पता नहीं, वो अभी नीचे पता चलेगा हमें. 3 years बिफोर द मैरिज ऑफ सूर्यांश एंड इन्वेस्ट इन सिक्योर्ड कूपन डिवेंचर्स. ठीक है. 6.5% with 3 years maturity. The same strategy shall be repeated for Dhruvi's marriage expense. चलो ये मैंने लिख दिया, फिर मुझे याद आया कि ध्रुवी का तो लिखा नहीं था बट लिखा ही है तो हो गया. The interest is cumulated and payable on respective maturity of each series of debentures. तो ये शांति हो गई. इंटरेस्ट जो भी आएगा वो क्यूमुलेटिव ही साथ में मिलेगा. That's perfect. What do you estimate at the size of the equity portfolio to be carved out today to meet the marriage expenses goal using this strategy? एकदम आसान क्वेश्चन है. So this sentence says that carved out means मुझे कितना पैसा उसमें से खींच लेना है. So जो इक्विटी पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है उसमें से कितने पैसे आज मुझे साइड पे कर लेने. So what amount shall be shifted to equity right now so that दोनों का मैनेजमेंट हो जाए. फाइन. So पीवी ढूंढना है ये दोनों गोल का. हाँ सूर्यांश के लिए जो पैसा चाहिए राइट वो ढूंढ लेते हैं. देखो ये बहुत आसान है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सॉल्व ही करता हूँ तो इजी पड़ेगा. सो 10 लाख आज है, कितने साल के बाद चाहिए? 13 years. How much is inflation? 6. How much is inflation? 6. And we find out 2132928. राइट. ये अमाउंट 13th पे चाहिए बराबर. अब 13th पे जो अमाउंट चाहिए उसके लिए मैं 10th ईयर के एंड पे इक्विटी पोर्टफोलियो चल रहा है. सो 10 ईयर के एंड पे मैं इक्विटी में से कुछ डेट में शिफ्ट कर दे रहा हूं डिबेंचर्स में. तो मुझे यहां पर जो अमाउंट मिली राइट वो अमाउंट अचीव करने के लिए 3 years बिफोर कितना पैसा डिबेंचर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स से दिस अमाउंट इज एफवी. n is equal to 3 divided by 6.5 and let us find out PV. 1765742. एक मिनट इरन भाई, I am coming to you. 1765 742. बराबर. Correct. So this is the amount to be invested in debentures. ठीक है. तो अब डिबेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे 10 साल के एंड पे इतने पैसे चाहिए. तो हाउ मच शुड बी
इनइक्विटी, तो इसको FV ले लिया, N इज इक्वल टू 10, I/Y इक्विटी का कितना दिया है केस स्टडी में? 11 था क्या? लेफ्ट साइड पे आपका अभी तक देखा 11 एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ इसमें कितना है. इट इज इक्विटी इज 11. हाँ, लेट अस फाइंड आउट PV. सो दिस आंसर नंबर 1 बताओ 6.2 lakhs. कितना? 6,21,867. 621,867. 7. 621,867. ठीक है, ये किसका हो गया? सूर्यांश. Yes. रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ध्रुवी और मुझे दूसरी PV बताओ. चेंज सिर्फ ये पीरियड में होगा, राइट, एंड अमाउंट्स में भी होगा डेफिनेटली. सो इफ आई से गाइड यू विथ ध्रुवी, तो यहाँ पर पहले पीरियड होगा 18 साल और यहाँ पर पीरियड कितना होगा? 15 साल. एंड डेफिनेटली अमाउंट्स विल चेंज अकॉर्डिंगली. सो अब मुझे दूसरी अमाउंट ढूंढ के फिर बताओ. Finally, we arrived at an answer that is 93,869. Make a total. C. Sorry. B for Bombay. 11.16. Okay, done. One more boundary. और ये क्वेश्चन पक्का कोई भी बताइए आसान था. Isn't it? Yes sir. बस तो अभी तो देखो हमने 5 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए एंड वी हैव स्कोर्ड रियली वेल. थोड़ा